Hi students, welcome again in the second part of video in which I'm going to explain organic reasoning questions for class 12th chemistry, and these questions are going to prove very beneficial, important for the forthcoming CBSE examination. So let us start without wasting any time. Question number 22. The question is, why do amines behave as nucleophiles? सो एमाइन न्यूक्लियोफाइल क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि एमाइन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है. I can explain you with the help of this example. This is methane amine and this is C2H5Cl. Now क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा और इथाइल पे प्लस चार्ज आ जाएगा. अब इस इलेक्ट्रॉन डाइवर्शन सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना देगा एन मिथाइल इथेन एमाइन प्लस HCl. So like this it works. So question number 23. Now question is, why is alkyl amine more basic than ammonia? भाई alkyl amine contains electron releasing या plus I group alkyl, so it increases the electron density on the nitrogen atom, so the lone pair donation power of amine increases. That is why alkyl amine are more basic than ammonia. Question number 24. Which of the following compound will have the highest melting point and why? Ye 1, 2 and 3, there are 3 compounds. If you just have a closer look on all these compounds, you will find that second molecule compound is the most symmetrical one. Why? Because in this both methyl group and chlorine groups, they are at para position with respect to each other. That is why due to its symmetry it fit better in the crystal lattice as compared to the other two isomers, so it has the highest melting point. Now question number 25. Which is a stronger acid, phenol or cresol, and you have to explain why. First of all, you need to understand what is cresol. Cresol means OH and methyl group. They are present at ortho position with respect to each other. Now we know that the cresol contains, this is cresol, so this cresol contain methyl group which is a plus I group, so it increases this methyl group, it increases the electron density on the OH and O and H bond. That is why it becomes difficult to break the OH bond, so proton loss is difficult, so cresol become less acidic. Okay, now in phenol there is no plus I or electron releasing group, this is phenol, so that is why the polarity of OH bond is more, so OH bond is easy to break in case of phenol, so proton can be easily released, so phenol becomes more acidic. Question number 26. How is that alcohol and water are miscible in all proportions? Simply, whenever question on miscibility or solubility comes, you have to write because of intermolecular hydrogen bonding. Both alcohol and water, they are have intermolecular hydrogen bonding, and that is why they are soluble. Question number 27. Why do alcohols have higher boiling point than haloalkanes of comparable molecular masses? Because alcohols have extensive intermolecular hydrogen bonding as it is shown. Okay, so very high amount of energy is required to break these bonds, so their boiling point is high. But in case of haloalkanes don't have intermolecular hydrogen bonding, there is weak dipole-dipole bond and van der Waals forces of attraction is there in haloalkanes. That is why haloalkanes have low boiling point. Question number 28. Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki in conversion of alcohol to alkyl iodide? ये है बेटा alcohol, okay, and this is your alkyl iodide. And now when we convert alcohol into alkyl iodide, we do not use potassium iodide, okay, and sulfuric acid. This is potassium iodide and this is H2SO4. If you are using potassium iodide and H2SO4, this Ri is not formed.
Okay, and if you want to convert this alcohol into alkyl iodide, then you use directly Hi and heat it, then it can be converted. But if you are using Ki and H2SO4, then this reaction is not going to happen. You have to explain why. So actually what happens when Ki react with H2SO4, then it forms Hi. This hydrogen iodide gets oxidized by H2SO4 into iodine. And once the iodine is formed, then you cannot expect your product alkyl iodide. I hope you got it. So once again I'm showing here Hi is needed for this purpose. However, it cannot be prepared when we together react Ki and H2SO4, because H2SO4 is a oxidizing agent. It convert Hi into iodine, therefore it cannot, so therefore it cannot form alkyl iodide. Okay, so now I'm coming to question number 29. Why are phenols more acidic than alcohols? देखिए phenols are aromatic compound, and when phenol it loses proton, then it give rise to phenoxide ion. Benzene के ऊपर O negative, this is called phenoxide ion and proton. Okay, and the question is, phenol are more acidic than alcohols. Now the phenoxide ion is resonance stabilized. It has, phenoxide ion has 5 resonating structures. So this is more stable. So the reaction will move in the forward direction. So proton can be easily released. So phenol become more acidic. But in case of the alcohols, this is alcohol ROH, and when alcohol lose proton, it forms RO negative, means alkoxide ion. So now alkoxide ion is not resonance stabilized. That is why alcohols are less acidic. Okay, and second point, you can also say that in alkoxide ion R is the plus I group. You know, this is the electron releasing group, and it further increases the electron density on the oxygen atom, which makes alkoxide ion unstable. That is why alcohols are less acidic and phenols are more acidic. So now question number 30, explain why phenol do not undergo substitution of alcohols OH group like alcohols. So phenol do not undergo substitution. Here substitution means nucleophilic substitution reaction. Okay, तो phenols nucleophilic substitution reaction नहीं करते हैं जबकि alcohols करते हैं. ऐसा क्यों? So आपको हम बता दें, this is phenol and you all know that phenol do resonance. and what type of resonance? यहाँ से नीचे की ओर आता है तो इसे हम कहेंगे माइनस आर इफेक्ट. ओके, सो जब ये नीचे की ओर आता है तो रेजोनेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो इसीलिए इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिनॉल पे डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसीलिए फिनॉल्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या करते हैं तो वो बहुत ही हैर्श कंडीशन, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में करते हैं. जबकि अल्कोहल्स में जो है इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन carbon and oxygen. Okay, so nucleophile can easily attack. This is what written here also. Okay, that is why alcohols undergo substitution easily and phenol do not undergo substitution reaction. Question number 31, why propanol has higher boiling point than the hydrocarbon? तो simply propanol is an alcohol, it has strong intermolecular hydrogen bonding, जबकि ब्यूटेन में वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. अल्कोहल्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के साथ, इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं. जबकि अदर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, वो ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. ओके, और ऊपर से ये नॉन पोलर होते हैं और पानी के साथ जो है हाइड्रोफोबिक रहते हैं और इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है. क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल.
दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, तो अब देखिएगा आप, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में दो तरह की प्रोसेसेस हो रही हैं। देखिए NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप, सो या इट शोज माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, कौन सा ऑक्सीजन, OH बॉन्ड की ऑक्सीजन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो जाती है। ओके, और इसीलिए OH बॉन्ड को तोड़ना इजी हो जाता है, मीन्स द लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम इजी। दूसरा इफेक्ट होता है माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट का मतलब है ये OH इज द सब्सटीट्यूएंट, और इस सब्सटीट्यूएंट से जब बेंजीन रिंग की ओर, नीचे की ओर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेंजीन रिंग की वजह से, है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन जो माइनस आर इफेक्ट है, ये भी आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ द माइनस आर इफेक्ट अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो कम हो जाएगी और OH बॉन्ड को तोड़ना अगेन ईजी हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे प्लस माइनस आर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की ओर ट्रांसफ़र कर रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो इसीलिए अब ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है उसके बॉन्ड को तोड़ना इजीली हो जाता है, क्योंकि अब ऑक्सीजन अपनी कमी को पूरा करने के लिए इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी ओर खींचता है। ओके, तो एग्जाम में आपको सिंपली लिखना है, ड्यू टू द माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ द NO2 electron density on the OH bond decreases, therefore proton loss becomes easy। जबकि मिथॉक्सी जो आपका मिथॉक्सीफिनोल है, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, विच इज़ शोन हेयर। ओके, दिस इज़ ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। तो आप इसमें देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप है ये माइनस आर नहीं, ये प्लस आर इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो इसकी वजह से O और H बॉन्ड अल्कोहल के ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसीलिए प्रोटॉन को रिलीज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। एक तो हो गया प्लस आर इफेक्ट, और दूसरा हो गया प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट है OCH3 का, और प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है ये जो फिनॉल से ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर जा रहे हैं, OH की ओर जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप इन दोनों इफेक्ट्स को लिख सकते हैं। ओके, so now I am coming to question number 34. Now question is, explain how does OH group attached to carbon of benzene ring activate it toward electrophilic substitution reaction। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ OH ग्रुप कह रहा है कि कैसे इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको प्रमोट करता है। अब आप जानते हैं कि फिनॉल एक कंपाउंड है जो कि रेजोनेंस शो करता है। अब रेजोनेंसिंग जब हम व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन वी फाइंड दैट एट ऑर्थो पोजिशन एंड एट पैरा पोजिशन, ओके, इन डिफरेंट resonating structures। okay, I am not writing all the resonating structure here। so ortho और para पे due to the plus R effect, yeah, due to the resonance effect, due to the resonance effect, simply right, the electron density at ortho and para position increases। अब इस rich center पे electrophile can easily attack। okay, so that is why it a phenol yeah OH group helps to promote the electrophilic substitution reaction by increasing the electron density at ortho and para position। Question number 35, why CO2 is non-polar while ROR ether is polar। देखिए CO2 is a linear molecule। Here the dipole moment of the two CO bonds are equal and opposite, and it cancel each other, hence it becomes non-polar। In contrast, in ROR molecule, the two dipole bonds are inclined to each other at the angle of 110, so the two dipole do not cancel each other। okay, so ROR is a polar molecule। Question number 36, why is the reactivity of all the three classes of alcohol with concentrated HCl and zinc chloride, which is Lucas reagent, is different? So we know that primary alcohol do not react with Lucas reagent,
and secondary alcohol react with Lucas reagent after 5 minutes and tertiary alcohol react immediately. Now why this? There is a variation in the reactivity. This is the question. So the simple answer is whenever these primary, secondary and tertiary alcohols, it forms intermediate carbocation. So their stability is different. Now we know that tertiary carbocation is most stable. This is the carbocation stability order, and primary carbocation is least stable. And if tertiary carbocation is most stable, then the reactivity of the tertiary alcohol becomes more. That is why tertiary alcohols react immediately with the Lucas reagent due to greater stability of tertiary carbocation. क्योंकि जब कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा ना तो उसके ऊपर फर्दर जो दूसरा रिएक्टेंट है ना वो इजीली अटैक कर सकता है, यही वजह है. Question number 37. Dipole moment of the phenol is smaller than that of the methanol. Why? तो डाइपोल मोमेंट फिनॉल का कम है, तो मतलब कि डाइपोल मोमेंट माइक्रो ये होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. अब आप जानते हैं कि फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से O और H के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. ओके, सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से थोड़ी सी आपकी एक तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, ये डिस्टेंस. ओके, दूसरा रीज़न देखते हैं कि इन फिनॉल CO बॉन्ड इज लेस पोलर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, बट इन मिथेनॉल इज मोर पोलर बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप. बॉन्ड लाइन छोटी हो गई और दूसरा जो पोलैरिटी है ना वो भी आपकी जो है ना पोलैरिटी भी इसमें जो है आपकी कम हो रही है. अब यहाँ पे देखिएगा आप, दिस इज मिथेनॉल CH3OH. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह की रेजोनेंस नहीं है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा. और दूसरा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से जो आपका डाइपोल मोमेंट जो है इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है मिथेनॉल का, ये देखिए. ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38. व्हाई आर एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन. तो देखिए एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप मौजूद रहता है, जबकि कीटोन्स में 2 एल्काइल ग्रुप मौजूद रहते हैं. तो ये 2 एल्काइल ग्रुप हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए. यहाँ कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए कीटोन्स आपके लेस रिएक्टिव होते हैं. एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस कम है, न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली अटैक. दूसरा रीज़न, ये जो प्लस आई ग्रुप होता है ना, जहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर जो प्लस चार्ज है वो कम हो जाता है. जब प्लस चार्ज कम हो जाता है तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस आई ग्रुप है, एक ही इंडक्टिव ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ईजीली अटैक कर जाता है. कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन. ओके, here the in case of number 1 electrophilicity of carbonyl carbon is more, so nucleophile attack is easy. Okay, but in second compound electrophilicity of the carbonyl carbon मतलब कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है that is less, so the attack of nucleophile is difficult. तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं. इन एडिशन टू दिस यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप. ओके, aldehyde can more easily oxidized than ketones. Okay, as a result aldehyde act as a reducing agent. तो एक और पॉइंट भी दिया है इन्होंने कि ये देखिए भैया एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में आपका हाइड्रोजन होता है, कीटोन में तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है ना. तो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन होने की वजह से कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होने की वजह से ये जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एल्डिहाइड जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं. टॉलेंस और फेलिंग्स रिएक्शन रिएजेंट्स को ये रिड्यूस कर देते हैं. एक रीज़न ये भी लिखा है.
क्वेश्चन नंबर 39, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड इज़ अ लिक्विड। तो ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड है, OH ग्रुप है यहाँ पे, और ये CHO ग्रुप है, और दोनों 1-2 पोजीशन पे है, इसलिए हमने इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड कहा। ये लिक्विड है, जबकि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड ये यहाँ पे CHO ग्रुप और OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है। ये इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड का कह रहे कि ये ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक। बट इन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विद इन द मॉलिक्यूल ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। ओके, it means one ortho-hydroxy benzaldehyde is not bounded to other ortho-hydroxy benzaldehyde, है ना। तो यहाँ पे जो है इसको बॉन्ड्स को तोड़ना जो है इजी है। ऑर्थो-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड्स के बीच के जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि ये दूसरों के साथ तो बॉन्ड बना नहीं रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड का वो कम होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 40, CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3COCH3, मतलब दिस इज एसिटिल्डिहाइड जिसको हम इथेनॉल कहते हैं आयुपिक नेम, एंड दिस इज एसीटोन जिसका आयुपिक नेम है प्रोपेन 2-ओन। तो इन दोनों में जो एसिटिल्डिहाइड है ना वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। इसका रीज़न बताना है। ये आपका है एसिटिल्डिहाइड, तो वही रीज़न है। यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप एक ही प्लस आई इफेक्ट है, हिंड्रेंस कम है, और कार्बोनाइल जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी या उस पर जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा है। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन साइनाइड से निकला हुआ जो Cn नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है। बट इन केस ऑफ एसीटोन यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, हिंड्रेंस है, तो साइनाइड का अटैक जो है कार्बोनिल कार्बन पे डिफ़िकल्ट होगा। दूसरा रीज़न कि ये 2 मिथाइल ग्रुप shows 2 plus I effect, so stronger plus I effect, and lesser is the plus charge on the carbonyl carbon, so the attack of nucleophile is difficult. So nucleophilic reactivity with hydrogen cyanide is less in case of acetone. Now I'm coming to question number 41. तो यहाँ पे क्वेश्चन है C6H5COCH3 which is called acetophenone, ये less reactive है than the acetone toward the nucleophilic addition reaction. तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर ये है बेंजीन और उसके ऊपर COCH3 ग्रुप ये लगे हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कार्बोनिल कार्बन के गिर्द आपके यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एक मिथाइल है और दूसरा है बेंजीन। अब बेंजीन यहाँ पर कौन सा इफेक्ट करता है? प्लस आर इफेक्ट करता है, मतलब कि बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूएंट की ओर जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाता है ना, ये देखिए ये बेंजीन रिंग है और सब्स्टिट्यूएंट ये जो है सब्स्टिट्यूएंट कार्बोनिल कार्बन है उसकी ओर जब इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होते हैं तो उसको हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस आर इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग प्लस आर इफेक्ट दे रहा है, और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट में प्लस आर इफेक्ट जो है ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होता है देन द प्लस आई इफेक्ट। तो इसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है ना वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट बोलेगा कि भाई हम तो जो है आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर रिलीज़ होगा तो इसके जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज की जो प्लस चार्ज है वो कम हो जाएगा। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन वो रिड्यूस हो जाएगा। जब इसके ऊपर प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो भैया इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर चाहिए होता है ना। अब इन केस ऑफ द एसीटोन, तो एसीटोन में आप देखेंगे
यहाँ पर आपको ये प्लस आर इफेक्ट नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ प्लस सा इफेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लस एसीटोन में प्लस आर इफेक्ट नहीं होने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन में प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट दोनों होते हैं, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42। एसीटोन पानी में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है, बेंजोफिनोन नहीं। तो इसका सिंपल से रीज़न है, जो बेंजोफिनोन है, मैं आपको बता दूं, बेंजोफिनोन में 2 बेंजीन ग्रुप्स और बीच में कार्बोनिल कार्बन रहता है। तो इसमें जो आपके फिनाइल ग्रुप 2 हैं जो काफ़ी बल्की होते हैं, तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ प्रॉपर्ली नहीं बनाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, इसलिए बेंजोफिनोन पानी में इनसॉल्युबल हो जाता है। जबकि एसीटोन में इट कैन ईजिली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, इसलिए पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है एसीटोन। Question number 43 suggests a reason for a large difference in the boiling point of butanol and butanol। तो ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ब्यूटेनल एल्डिहाइड है, इसमें वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहती है और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, वाई इज बेंजोइक एसिड लेस पोलर इन वाटर देन दी एसिटिक एसिड। तो भैया बेंजोइक एसिड में बेंजीन ग्रुप है, ये काफ़ी लार्ज हाइड्रोकार्बन होता है, तो लार्ज हाइड्रोकार्बन होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेंजोइक एसिड में काफ़ी कम होती है। जबकि एसिडिक एसिड में आपका जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये जुड़ा रहता है COH के साथ, तो ये मिथाइल ग्रुप इज स्मॉल, सो it can like interact with the water easily, so it is more soluble. So these were the reasoning questions, second part of the organic reasoning questions. Hope you enjoyed the video. If you have any question or concern, you can put in the comment box or you can mail me. So till I develop my next video, stay fit, stay fine, best of studies. Thank you.